تو بات کریں گے حکومت کی جانب سے جو اس وقت صحافی کچھ پالیسیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایف یو جے کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریس کلبز پر سیاہ پرچم بھی لہرا دیے گئے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد قاتلوں کی عدم گرفتاری، ہیڈ آف آئی نیوز عماد یوسف کے خلاف جھوٹے مقدمے اور اس میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں سزائے موت تک کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ شاہد اسلم کی گرفتاری، اسی طریقے سے دیگر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اس پر پی ایف یو جے نے ہڑتال کی کال دی ہے اور ساتھ ہی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی لالا اسد پٹھان رہنما پی ایف یو جے، دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افضل بٹ صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ سر، بہت شکریہ۔ آج احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی لمبی تاریخ ہے صحافیوں کی جدوجہد کی، اور ہر دور میں صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے، لیکن ہم جمہوریت کے دور میں اس طرح کی دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کو ایک طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن آج بھی جن واقعات کو میں نے گنوایا، اگر ان کو دیکھا جائے تو شاید 2022 سے زیادہ خطرناک سال صحافیوں کے لیے نہیں رہا ہوگا۔ آپ کیا کہیے گا؟ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے بٹ صاحب؟ دیکھیں، آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر وفاقی حکومت کی میڈیا کچھ پالیسیوں اور میڈیا پر عائد پابندیوں اور آزادی اظہار پر پابندیوں کے خلاف ملک گیر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ خیبر سے کراچی تک تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ موجودہ اگر 10 ماہ ہو گئے ہیں تو وفاقی حکومت کو آئے ہوئے، اگر ہم اس کا ماضی کی حکومتوں کے ساتھ موازنہ کریں تو جرنلسٹوں کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات ان 10 ماہ کے اندر درج ہوئے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیمرہ کو جس طرح ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح ٹی وی چینلز کو تھوک کے حساب سے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے، ماضی میں 10 ماہ کے دوران اتنے نوٹسز کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح ایف آئی اے کو صحافیوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ٹول کے طور پر وفاقی حکومت ایف آئی اے کو استعمال کر رہی ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں کہ عماد یوسف جو بھائی کے نیوز ہیڈ ہیں، ان کے خلاف جن دفعات کے تحت انہیں مقدمہ قائم کیا گیا ہے، پاکستان کی 70 سالہ 72 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک جرنلسٹ کے خلاف اس طرح کا مقدمہ قائم کر دیا گیا جس میں اسے عمر قید یا سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یوم سیاہ منانے سے پہلے ہم نے کوئی دروازہ وفاقی حکومت کا ایسا نہیں چھوڑا جس کو ہم نے نوک نہ کیا ہو۔ تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں، ان کے ساتھ کئی بار بات چیت کی، کئی ملاقاتیں کی، سیکٹری انفارمیشن کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی، کئی دفعہ مذاکرات کیے، لیکن وہ وفاقی وزیر اطلاعات وہ سب کچھ فراموش کر گئی ہیں۔ جو ماضی میں جب وہ اپوزیشن میں تھیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم فیقہ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اپنی ریٹ پٹیشن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے تو وہاں مریم اورنگزیب صاحبہ پی ایم ایل این کی جانب سے ایک ریٹ پٹیشن لے کر گئی، اور اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہماری پی ایف جے کی جو پٹیشن تھی وہ تو انٹرٹین کی، لیکن پی ایم ایل این کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ لے کر گئی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فرحت اللہ بابر صاحب لے کر گئے تھے۔ ان دونوں کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ہدایت کی تھی کہ میں آپ کی یہ پٹیشن تو واپس کر رہا ہوں، لیکن آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کے پارلیمانی پارٹی، آپ کی پارلیمانی پارٹیز موجود ہے، آپ اپنا رول جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ادا کریں۔ اور آج یہ دونوں پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے، دونوں حکومت میں ہیں، انہوں نے اپنے مقدمات جتنی صورت کے ساتھ ختم کیے، ان کو میڈیا کے متعلق ہر چیز بھول کے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے میڈیا کی کہ جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہی میڈیا جو ہے اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، جو ہی اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو یہی میڈیا جو ہے اس کی آنکھ میں کانٹے کی طرح جو ہے کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم جو یوم سیاہ منا رہے ہیں، یہ ہماری احتجاجی تحریک کا آغاز ہے جو ہم نے وفاقی حکومت کی میڈیا کچھ پالیسیوں کے خلاف کیا ہے، اور اس کا آج جب پورے ملک میں یوم سیاہ کے بعد جو اگلی کال ہم دے چکے ہیں
कि 30 जनवरी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से पार्लियामेंट हाउस तक जो है वो प्रेस फ्रीडम रैली निकाली जाएगी और जो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचकर प्रेस फ्रीडम धरने में तब्दील हो जाएगी और वो प्रेस फ्रीडम धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत वफाकी हुकूमत होश के नाखन नहीं लेती, मीडिया कुछ पॉलिसियां खत्म नहीं करती। जो उन्होंने वादे अपोजिशन के दौरान हमारे कैंपों में आकर किए गए थे, हम उसी जगह कैंप लगाकर बैठेंगे पार्लियामेंट के सामने, जिस हमारे कैंप में जब हमने पीएमडीए के खिलाफ जो साबक हुकूमत में साबक पीटीआई के दौर में आप जानते हैं पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कैंप की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने जब पार्लियामेंट हाउस के सामने कैंप किया तो मौजूदा वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन में 2 मरतबा उसका विजिट किया। मौजूदा वजीर खारजा और पीपल पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब ने एक दिन में 2 मरतबा हमारे कैंप का विजिट किया। मौलाना फजल रहमान जो इस जमात के इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक दिन में 2 मरतबा हमारे कैंप का विजिट किया और मरियम औरंगजेब साहबा ने उस वक्त तो कम से कम एक दिन में कम से कम 10 मरतबा विजिट किया होगा कि हम मीडिया के लिए ये करना चाहते हैं, हम मीडिया की आजादी के लिए आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम मीडिया की आजादी के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी वो किरदार अदा करेंगे जो पीएफजे कहेगी। लेकिन मैं समझता माह हो गए हैं, 10 अप्रैल को ये गवर्नमेंट कायम हुई थी और आज जनवरी गुजर रहा है। इस 10 माह के दौरान मौजूदा हुकूमत ने मीडिया के साथ किए हुए तमाम वादों को फरामोश कर दिया, बल्कि अभी 4 रोज कबल सर्कुलेशन के जरिए पैमरा के इख्तियारात बढ़ाने के लिए जो समरी मंजूर की गई है, अपने वादों के मुताबिक इन्होंने किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड नहीं किया। उसमें एक अच्छी बात भी है कि जो पैमरा को ये इख्तियार दिया गया है कि वो तनख्वाहों के मामले को भी टेकअप कर सकता है, लेकिन जिस तरह इसका दायरा कार जो है वो आजाद तशरीह तक बढ़ा दिया गया है कि जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह फेक न्यूज का एक नाम तो लिख दिया गया है कि फेक न्यूज की बुनियाद पर किसी चैनल के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकेगी, उसका लाइसेंस जो है वो खत्म किया जा सकेगा। लेकिन अभी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स की, उसके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बातचीत जारी थी। पहला महीना तो बातचीत जारी हुई, उसके बाद 8-9 माह से तो वफाकी वज़ीर इत्तलात के पास टाइम ही नहीं है मीडिया के लिए, क्योंकि वो बड़ी जंग लड़ रही है। बिल्कुल तो ऐसे ही मीडिया इस वक्त हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो कदगनें लगाई जा रही हैं और एक जंग लड़ी जा रही है सहाफियों की जानिब से। पीएफयूजे इस वक्त हमने देखा जो उनकी कॉल पर मुजाहरे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। पीएफयूजे के रहनुमा लाला असद पठान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। लाला असद पठान साहब, ये कहिएगा, जिस तरह से अफजल भट्ट साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को कहा जाता था कि ये मीडिया पर कदगन लगा रही है और यही पीएमएलएन और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की बातें किया करती थी जब ऑपोजिशन में थी, लेकिन आज जब हुकूमत में है और 13 जमातों का इत्तेहाद है, तो ये जिम्मेदारी अब किस पर आयद होती है? जो जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां सहाफियों के साथ की जा रही हैं और चंद मीडिया हाउसेस के खिलाफ किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल की तरफ से पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर पाकिस्तान के टूल ओवर्स में छोटा बड़ा शहर कोई तफरीक नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में प्रेस क्लब कायम है, वहां पर परचम लहराए गए हैं और सहाफी सरापा एहतजाज है, क्योंकि सहाफी समझते हैं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और उनकी दी हुई जो ऐलान करता जो पॉलिसीज हैं या जो उनके बयानात हैं वो एक रेड लाइन है जर्नलिस्टों के लिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को मौजूदा हुकूमत पैमरा के जरिए और पीका कवानीन के जरिए अंडरमाइन करना चाहती है, अपने कंट्रोल में लाना चाहती है और उन पर जबाबंदी की कोशिश कर रही है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक वर्कर से लेकर डायरेक्टर न्यूज तक को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो इबरत का निशान बने और तमाम जर्नलिस्टों को ये मैसेज जाए कि वो किसी भी हुकूमत वक्त के खिलाफ बात न करें। हमें तकलीफ इस बात की है कि ये वही 13 पार्टियों की मुश्तमल जमायत है जिसमें पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब भी हैं और मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और बाकी उनके रुफ्ताकार, ये तमाम हमारे कैंपों में आकर आजादी सहाफत के लिए हमारे साथ
बरसरे पैकार होने की दावे करते रहे, लड़ने की बात करते रहे, मगर आज बदकिस्मती से ये टाइम हमें देखना पड़ रहा है। टाइम देखना पड़ रहा है, लेकिन यकीनन ये एहतजाज जो किया जा रहा है, ये आवाज बुलंद की जा रही है शहर शहर सहाफियों की जानिब से। लाला असद पठान साथ ही रहिएगा। इस वक्त कराची में हम देख रहे हैं एहतजाज का सिलसिला जारी है। सहाफी रहनुमा खिताब कर रहे हैं। सहाफी फ़हीम सिद्दीकी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इन्हें आजादी इजहार राय और आजादी सहाफत का सब लंबरदार लगने लगते हैं, लेकिन जब ये खुद हुकूमत में आते हैं तो इन्हें अपने ऊपर कोई जरा सी भी नुक्ताचीनी बर्दाश्त नहीं होती। हमारा ये काम है कि हम आपको आईना दिखाएं, हमारा ये काम है कि हम हक और सच बोलें और लिखें और दिखाएं। इस काम से रोकने की कोशिशें पिछले 70 सालों में बहुत बार हुई हैं। हमारे सीनियर्स ने इसके लिए जेलें भी देखी हैं, गिरफ्तारियां भी पेश की हैं, अपनी पीठों पर कोड़े भी खाए हैं, लेकिन हम न पहले कभी झुके हैं, न पहले कभी बिके हैं, और न हम आज बिकेंगे या झुकेंगे। अम्माद यूसुफ का जुर्म क्या है? उसका जुर्म सिर्फ यह है कि वो उस चैनल का डायरेक्टर न्यूज है जो आपको एक आंख नहीं भाता। वो उस चैनल से ताल्लुक रखता है जहां हक और सच की बात होती है, कोई लगी लिपटी नहीं रखी जाती, और यही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है। हम, जैसे मैंने पहले कहा, न पहले कभी डरे हैं, न झुके हैं, न मुकदमात से, न गिरफ्तारियों से, न जेलों से। 1978 में यही कराची प्रेस क्लब था जहां से हम गिरफ्तारियां दिया करते थे। हमारे लिए गिरफ्तारियां देना भी कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए थाने और जेलें भी कोई नई बात नहीं है। यही कराची प्रेस क्लब था जब नवंबर 2007 में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा सहाफियों ने गिरफ्तारियां पेश की थी। हम आज भी तुम्हें दावत देते हैं कि आओ, ये सहाफी यहां खड़े हैं, आकर इन्हें गिरफ्तार कर लो। हमारे अंदर इतनी जुर्रत मौजूद है कि हम और हक और सच के लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर यह हिम्मत नहीं है। तुम रात की तारीकी में तो लोगों के घरों पे छापे मार सकते हो, तुम रातों रात किसी के खिलाफ मुकदमा शहर के दूर दराज के इलाके में दर्ज करके उसके सिर्फ चंद घंटों के बाद उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम दिन दिहाड़े ऐसी कोई बात करो। आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। क्यों है? हमें कोई पीटीआई से मोहब्बत नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ सहाफियों के साथ, सहाफत के साथ इस मुल्क में पीटीआई के 4.25 साल दौर में। और जब तुम आए तो हमें एक उम्मीद जरूर जागी थी कि शायद इस पीडीएम की तहरीक, इस पीडीएम की हुकूमत में इस मुल्क में आजादी सहाफत, आजादी इजहार राय को थोड़ा सा फरोग मिलेगा, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो सका। आज फिर मुसलसल 2 महीने या 3 महीने में हम शायद 7वीं या 8वीं बार कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, और सिर्फ कराची प्रेस क्लब क्या, आज पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। होश के नाखुन लो। तुमने जिनके कहने पे ये सब किया है हम जानते हैं, उनका ये सच से दूर रहेंगे। मैं अपनी बात इस पर खत्म करूंगा कि खुदारा तुम सहाफत से भी दूर रहो, क्योंकि हमने तुम्हारे जैसे बहुत आमिर देखे हैं और उन्हें घुटने टेकते हुए भी देखा है। बहुत शुक्रिया। मनाजिर आप देख रहे हैं, कराची के मनाजिर हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों की जानिब से आज यौम सियाह मनाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत की मीडिया कुश पॉलिसियों और आजादी इज़हार राय पर पाबंदियों के खिलाफ सहाफी सरापा एहतजाज हैं। पीएफयूजे की कॉल पर
आज मुल्क भर में मुज़ाहरात सिलसिला जारी है।